السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا آخر الانبياء وانتم آخر الامم۔ رواه الامام الهمام البزار في مسنده۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج 22 فروری 2024 بروز جمعرات ہے، اور میں یہاں راجن پور کلاں ضلع رحیم یار خان میں عزیزم مولانا محمد راشد اور مولانا محمد ساجد کی دعوت پرخلوص پر ان کے اس خوبصورت گلشن میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، آج سے 2 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس گلشن کی ابتدا ہم نے کی تھی، آج اس کے حاصل ہونے والے پھلوں کو ہم انعام دے رہے ہیں۔ آپ کے سامنے ان خوش نصیبوں نے انعام وصول کیا جنہوں نے اس گلشن میں اپنی تعلیمی اوقات کی ترتیب کو مکمل کیا۔ میری دعا ہے رب کریم ان کے اوپر اسی طرح اپنے کرم اور فضل کو جاری فرمائے۔ میرے دوستو، میں نے آپ کی خدمت میں عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ شاید میں عظمت قرآن کریم پر بات کرتا، کیونکہ ہم نے جو 3-4 ماہ پہلے جو دن طے کیا تھا وہ اس حوالے سے تھا، لیکن میں اس کو تحفظ ناموس ختم نبوت پر اسی لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ملک پاکستان میں ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے چیف جسٹس نے ایک وہ احمقانہ فیصلہ کیا ہے، بچگانہ اور فضول فیصلہ کیا ہے کہ جہاں عدالت عالیہ کے احتراموں کے لفظ ہوا کرتے تھے اور بڑے عزت اور احترام سے نام لیا کرتے تھے، آج ملک کا ہر وفادار شہری، آئین اور اسلام کی قدر کرنے والا ہر سٹیزن آف پاکستان اپنی جوتی کے نوک پہ ان کے فیصلے کو رکھ رہا ہے۔ میں اسی حوالے سے آپ کے سامنے اپنا درد دل بھی پیش کروں گا۔ آج دوسرا دن ہے، میں نے کل اس وقت سے یہ پاکستان کے چوک اور چوراہوں پہ بات کرنا شروع کر دی ہے، اور ہم ہر چوک پہ انشاءاللہ تعالی یہ کھلی کھلی بات ہر منہ سے کہلوائیں گے کہ قادیانیوں کے حامی، بولیے بولیے جرت سے بولیے، قادیانیوں کے حامی صبر، قادیانیوں کے حامی صبر۔ چاہے وہ کہیں بیٹھا ہو، چاہے وہ کسی عہدے پہ ہو، چاہے وہ عہدے کے ساتھ ہو، عہدے کے بغیر ہو، ہم نے محبت سب سے پہلے رکھنی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں نا، میں سب ہی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، باقی باتیں ساری بات میں ہیں، حضور پاک علیہ السلام کا معاملہ پہ۔ اب میری بات آن ایئر بھی جا رہی ہے، پوری دنیا میں یہ بات، جتنے مسلمان ممالک میں اردو سمجھنے والے دوست ہیں وہ اس بات کو سن رہے ہیں، تو میں ایک جملہ تمام مسلمانان عالم اور خصوصاً پاکستان والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ
कल से मीडिया पर एक बात चलना शुरू हो गई है कि जी तुमने फैसला पढ़ा है, आपने चीफ जस्टिस का फैसला देखा है, उसने क्या लिखा है, फैसला पढ़ा नहीं है। और जोशीलों के कहनों पर, कोई कहते हैं फला के ट्रेंड पर आपने इस तरह की बात करना शुरू कर दी। मेरी मोबाइल में चीफ जस्टिस का फैसला मौजूद है और मैंने वो फैसला पढ़ा है। मैं उस फैसले को समझता हूँ। मैं LLB कर चुका हूँ, BA के बाद एडवोकेट की तालीम याफ्ता हूँ। मैं उसकी मुश्गाफियों को भी जानता हूँ, उसकी ऊंच और नीच को भी जानता हूँ। जो कहता है मैंने फैसला नहीं पढ़ा और फिर वो जुमला कहे, उसका मसला और है। मैंने फैसला पढ़ा है, मैं उस फैसले पर बात करने लगा हूँ। चीफ जस्टिस ने उसमें कादियानी को जमानत दी, वो अपनी जगह बात होगी, उसके लिए दफात निकाले, वो अपनी जगह बात है। लेकिन जिस पर हमें मेन एतराज है वो ये है कि जब सामने कादियानी मौजूद हो और वो कुरान करीम की तफसीर कादियानी जबान में कर रहा हो, उसको ये कहना कि पाकिस्तान में तो हर मजहब को अपनी मजहबी आजादी हासिल है, ये जुमला कहना उस आईन के कानून की शिद के खिलाफ वर्जी है जो 1984 में ज़ियाउल हक के दौर में सदारती ऑर्डिनेंस पास हुआ था कि उस वक्त तक कादियानी मजहब की इशाअत की इजाजत नहीं है जब तक वो आईनी स्टेटस तस्लीम करके खुद को काफिर और गैर मुस्लिम अकलियत मान नहीं लेते, तब तक वो अपना मजहब इस्लाम के नाम पे पेश नहीं कर सकते, तब तक वो अपनी कुफरी अजान इस्लाम के नाम पे पेश नहीं कर सकते, तब तक वो अपनी कुफरी तालीम मजहब इस्लाम के नाम पे पेश नहीं कर सकते, अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते, उसके ऊपर मीनार तामीर नहीं कर सकते और अपने मजहब की दावत नहीं दे सकते। ये लोग अज़ान देकर तशहीर करके ये जुमला कहकर और कुर्बानी नहीं कर सकते क्योंकि पहले आईन में दी हुई शिकों को मानेंगे फिर मजहबी आजादी की बात होगी। ये बुनियाद है, इसको लोगों ने छोड़ दिया। सारी दुनिया कह रही अजी आपने कानून पढ़ा, आपने फैसला पढ़ा, हम अंधे लोग नहीं हैं। इस कानून में, इस फैसले में जितने झोल मौजूद है ना वो मैं एक तरफ रख के कहता हूं, हम इसको जानते हैं। कल का जुमा है और जब जुमे में मुसलमान के पाकिस्तान के सामने उलमाए कराम ने खुतबाए कराम में बात रख रही है तो शायद मजमे में बैठा हुआ कोई कादियानियों का टाउट या हमारा नावाकिफ मुसलमान भाई, दोनों हो सकते हैं ना, वो मेरे खतीब, मेरे आलिम, मेरे दोस्त, उनको ये जुमला कहे कि आपने फैसला पढ़ा है तो सीना ठोक के कहना हाँ हमने फैसले में देखा है, उसमें बाकी झोल और है, लेकिन कादियानियों को मुखातिब करके कहना कि यहाँ पर हर मजहब को आजादी है, ये बात इस्लाम के भी खिलाफ है, कानून पाकिस्तान के भी खिलाफ। देखो कादियानियों को हक तब होगा जब वो खुद को गैर मुस्लिम जो कानून ने उनको शिक दी है वो माने। वो मानने के लिए तैयार नहीं है और हमारा चीफ जस्टिस कहते जी आजादी है, जी हाँ, मुकाला दोत्री मल्ले थे चट्टी नानी थे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बेगैरती हमसे बर्दाश्त नहीं होगी कि हम इस तरह की बात को तस्लीम कर लें। अजी कादियानी मानने के लिए तैयार नहीं है और तुम वकील बिला तवकील बने फिरते हो। अजी इनको हक है, पहले वो खुद तो माने। आज तक किसी कादियानी ने वोट कास्ट नहीं किया इसलिए कि खुद को कादियानी गैर मुस्लिम मानना पड़ेगा फिर वोट कास्ट होगा। वो तभी कह रहे थे अजी हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में हक दिया जाए, हम ओवरसीज पाकिस्तानी बन के वोट देंगे क्योंकि वहां मुस्लिम और गैर मुस्लिम के फर्क में डंडी मार देंगे और हमारे वालों को पता ही नहीं है। वो आईन नहीं मानता, वो कानून नहीं मानता, मजहब तो दूर रहा और हमारे चीफ जस्टिस से कहते हैं जी मजहबी आजादी है। अच्छा अगर आजादी का यही माना है तो कल 4 टांगों वाला जानवर जा रहा हो, दुम भी हिला रहा हो, मैं कहूं ये कुत्ता नहीं है चीफ जस्टिस है, क्यों तुम मानोगे कि जमहूरी मुल्क में आजादी हम कह लें? मैं कहूं ये शैतान डेवल नहीं है, ये तो हमारा चीफ जस्टिस काजी फायजीसा है। कोई मानेगा जब शैतान को चीफ जस्टिस कहना चीफ जस्टिस की तौहीन है तो मिर्जे गामे को नबी कहना नबुव्वत की तौहीन है। ये कोई बात है? कोई अंधे लोग थोड़ी है उलमा। पानी में बह के तो चलो मेरा पोतरी में करो, चाहिए इतनी आसानी बात नहीं है। याद रखना ये हमारे सियासी इख्तलाफात होंगे, मसल की इख्तलाफात भी होंगे,
बरेलवी देवबंदी अहले हदीस में आपस में होंगे, लेकिन जब बात खत्म नबूवत की आएगी हम सब एक थे, एक है और एक रहेंगे। नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पे लाना, पे लाना, यू के हम यू पे लाना। और कुछ हमारे दोस्त नावाकिफ भी हैं। मैं आज सुन रहा था, हमारे एक एंकर है, सीनियर एंकर पर्सन है, मुल्क पाकिस्तान के कई चैनल्स पे काम कर चुके हैं। अब उनने माशाल्लाह अपने भारी भरकम एक यूट्यूब चैनल भी लॉन्च किया हुआ है, जनाब मंसूर अली खान साहब। वो उस पे फरमा रहे हैं कि जी मैंने फैसले को देखा है, वो दफा उस पर लगता नहीं था, जुर्म 2019 में हुआ है, और उस पर जो वो दफा लगाया वो 2021 में पास हुआ है। लिहाजा जब वो जुर्म कर रहा था तो उस वक्त उस पर यह दफा नहीं लगता था जो FIR में बाद में लगाया। मंसूर अली खान साहब, इतनी बात से तो मैं इत्तेफाक करता हूं, इतनी बात होती तो बात हम भी सह जाते, लेकिन मैं आपसे गिला करता हूं, आप जैसा टैलेंट रखने वाला बंदा, टैलेंटेड एंकर पर्सन, आप जैसा पढ़ा लिखा आदमी, क्या इस फैसले को किसी उस आलिम दीन से जो LLB की शक्ल भी जानता हो और जुडिशरी भी जानता हो, उससे आपने समझने की कोशिश की है? या आपने सिर्फ 4 वर्ग की लफ्ज पढ़ लिए, वो भी जो चीफ जस्टिस ने लिख के दिए उसी पर आपने एतमाद किया और उस पर गौर भी नहीं किया कि उस पर चीफ जस्टिस क्या रहा? मुझे आपसे कम अज कम ये उम्मीद नहीं थी। मैं गिला करते हुए आने क्या रहा, जाए इन तक बात, पहुंचाए इन तक बात कि मंसूर अली खान साहब, हमें आपसे उम्मीद नहीं थी। आप उस पर ये लफ्ज नहीं पढ़ रहे कि जी यार मजहब को मजहबी आजादी हासिल है। क्या तुम कादियानियों को मजहब समझते हो? या आसमानी मजहब है या ये फिरका और फितना है? भाई मजहब को आजादी है, ये तो हुजूर पाक इस्लाम की खत्म नबूवत पे डाका है। ये तो खुद को मजहब इस्लाम कहते हैं। ये माने हम गैर मुस्लिम है फिर हम आजादी की बात करें। हमने नहीं झगड़ा किया किसी ईसाई से, नहीं झगड़ा किया किसी यहूदी से, इस मसले पे नहीं झगड़ा किया किसी और से, लेकिन पहले वो मजहब तो बने। वो मजहब है नहीं, वो तो एक सियासी टोला है जो अंग्रेज की टापी करके अंग्रेज ने उनको नबी बनाया था। और ये जुमला फिर उसमें जनाब मंसूर अली खान साहब कह रहे ये तो पता नहीं फला किसी सियासी जमात ने चीफ जस्टिस के खिलाफ घनाउनी मुहिम चलाई थी, फला एंकर, फला सहाफी, फला सियासतदानों में फला औरत, फला मर्द इसमें शामिल हो गए होंगे। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इस बात को तो कंडेम करें कि चीफ जस्टिस साहब, आपने आईन और कानून की पासदारी का अल्फ उठाया है। 1984 की सदारती ऑर्डिनेंस में मौजूद है, पाकिस्तान पेनल कोड में मौजूद है कि कादियानी इस्लाम के नाम पे मजहब की तबलीग नहीं कर सकता। तो ये चीफ जस्टिस कादियानियों को सामने ठहरा के क्यों कहता है कि जी मजहबी आजादी हासिल है? ये तो आप सुन ले, ये तो सोच लेते। मैंने कहा जनाब मंसूर अली खान साहब, आप फिर हमें भी बुलाइए। आप कहते हैं ना आओ मेरे पास, टेबल के दोनों साइड बैठ के देखेंगे। आप हमें भी बुलाइए, हमसे भी बात कीजिए। अगर आप इतनी बातों के बाद भी चीफ जस्टिस की गलती को और बहुत बड़े ब्लंडर को गलती नहीं मानते, आओ हमसे आंखों से आंखें चार करो। आप मुझे बुलाओ, मैं आपके सामने आपके कैमरा पे बैठ के चीफ जस्टिस को इस मामले में मगरब की नुमाइंदगी करते हुए और आईन पाकिस्तान की मुखालफत करते हुए और पुरानी आयात को गलत मकाम पे पेश करते हुए साबित न कर दूं तो आप जो मर्जी है अमल लिए कह दें, लेकिन कोई बात तो है ना, कोई बात तो करें। आप सहाफी का काम ये होता है, वो टेबल के दोनों रुख पेश करता है, वो मुआफ़क़त मुखालफत में पेश करता है। आपने चीफ जस्टिस की बात कर ली है, आओ फिर खत्म नबूवत के मतवालों का मौक़िफ़ भी हमसे सुन लो। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आप जितने बैठे आप तायद करते हैं नहीं करते? बोलिए जितने बैठे हाथ खड़ा करके बताइए, यूं गुफ्तगू होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? खुलेआम बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? मैदान सहाफत का माना चापलूसी नहीं है और हमें आपसे उम्मीद नहीं है। यकीनन आप बुलाएंगे फिर हमारा मौक़िफ़ भी सुनेंगे। आप तायद करते हैं? मेरे दोस्तों, मैं एक एक चीज समझाने के लिए यूं कह रहा हूं। पहले मैंने आवाम के लिए कहा, फिर उलमा के लिए कहा, फिर मैं सहाफियों के लिए कह रहा हूं। क्यों? हमने कल में जो एहतजाज रखा, हर मस्जिद से आवाज उठनी चाहिए। याद रखना,
हम रंग व नस्ल के इख्तलाफ वाले नहीं हैं। हम लिसानियत, कौमियत, इलाकाइयत, सुबाइयत, नस्ल परस्ती, कौम परस्ती, जबान परस्ती वाले नहीं है। हमारे सामने है तो खुदा परस्ती है, मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत। सुभान अल्लाह। बस ये ज़हन में। अख्तर शीरानी एक शायर था, वो कहते थे बाज़ औक़ात कभी कभी शराब का जाम भी लगा देता था। मुशायरा पढ़ रहा था, मुशायरे में सभी बैठे थे तो एक कादियानी भी बैठा था। उसने देखा ना कि अख्तर शीरानी की दाढ़ी भी नहीं है, शराब भी पीता है, पता नहीं नमाज पढ़ता है नहीं पढ़ता। तो लोगों ने बात की जब वो शराब के धुत नशे में था, वाह अख्तर बड़ा बेहतरीन मुशायरा पढ़ रहे हो, आज अगर तुम्हारे सामने अल्लामा इकबाल जैसा शायर होता तो वो तुम्हारा मुकाबला कर सकता। अब ये नशे में था तो उसने कहा जाओ, इकबाल तो मेरा सिराना उठा के चलता, वो तो मेरे शागिर्दों के बराबर है। किसी और ने कहा कि मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का बहुत बड़ा नाम है, और वो अगर होता तो वो आपके मुकाबले में मुशायरा पढ़ सकता। मैंने कहा जाए, वो तो मेरे जूतियां उठा के चलता, मैं तो उससे भी बड़ा शायर हूँ। ठोकी जा रहा था बातें जो उसके मुंह में आती थी। तो कादियानी एक कोने में बैठा था, उन्होंने कहा जी ये वक्त है इसके ईमान पर चोट मारने। वो खड़ा हुआ और उन्होंने कहा अख्तर शीरानी अगर आज तेरा नबी तेरे सामने होता तो वो कह सकता तेरे सामने से। अब जहरी बात है वो नशे में बैठा हो तो वो पता नहीं कोई ऑल फॉल बक दे, लेकिन मुसलमान जितना भी गया गुजरा हो ना, जितना भी गुनाहगार, जितना खताकार हो, चाहे बेनमाजी हो, चाहे शक्ल उसकी नबी जैसी ना हो, लेकिन दिल से वो आका का गद्दार नहीं होता, वफादार होता। नहीं समझे? दिल में मोहब्बत की चिंगारी होती है। तो यूं शराब का जाम लिए उसने इसकी बात सुनी ना, यूं तो आहिस्ता आहिस्ता नशा टूटने लगा और आंखें खुली, और उसने शराब के जाम को रखने के बजाय इसको यूं देखा ना, अपने दिल में ख्याल आया कि यार अभी तक तो शायरों की बात थी, ये हुजूर की बात दरमियान में लाया है और मैं जवाब दूं ताकि मेरा ईमान जल जाए। उसने ये शराब की जाम वाली बोतल उठाई हुई थी, उठाकर उसके मुंह पे यूं दे मारी और मारी और स्टेज से लगाई छलांग, और उसको पकड़ने के लिए वो आगे और ये पीछे जा रहा है। आखिर जाकर उसको पकड़ के दो घोंसे लगा रहा है और कह रहा है लानती, मैं पहले गुनाहगार कम था कि तू मुझे हुजूर पाक का नाफरमान बनाना चाह रहा है? तो मैं पहले बेनमाजी जरूर हूँ, मैं दाढ़ी जरूर काटता हूँ, लेकिन याद रखना मैं आका का गद्दार नहीं हूँ, ताबेदार और वफादार। मैंने कहा मुसलमान जैसा भी हो ना, वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात नहीं सुनता। जनाब चीफ जस्टिस साहब, ये बात बबांगे दहल सुन लो, इस फैसले की वजाहत तुम्हें देनी पड़ेगी। अगर आप वजाहत नहीं दोगे ना कि इसमें आपने कादियानियों को सामने बिठा के मजहबी आजादी की बात की है, इंशाअल्लाह ताला फिर आपको घर जाना। ये बताइए, ऐसा बंदा चीफ जस्टिस के लिए अहल है? वो कादियानियों की हिमायत करे वो अहल है? जितने दोस्त बैठे खुला खुला कहे वो अहल है? कुर्सी छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए? कोई सालमा हुजूर पाक के नाम पे मुल्क बना था, कलमे के नाम पे मुल्क बना था, तुम यहाँ बैठ के कलम में जुमला कह दो। क्या हम इसको ये समझे कि जो पहले वाले तुम्हारे पेश रो थे वो भी कादियानियों के हक में मसाजिद को गिराने में अपने मुतनाज़ा फैसले दे गए और अमेरिका की वहां जाके रिहायशों को ले लिया? क्या तुम्हारा भी इरादा यही है कि 2 से 4 माह के बाद हमने यहाँ से छुट्टी लेके अपने अकाउंट के पास जाना है? अजीब मामला। हम इस वक्त एक एहतजाज में हैं कि हमारे हक पर डाका डाला गया, हम वोट के पहरे पर मौजूद हैं। कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजल रहमान एक अजीम तारीख का ऐलान करने लगे, उस दौरान ये दूसरी बदमाशी आपने डाली। याद रखो, एक बदमाश का मुकाबला जमीयत उलमा करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे या नहीं? आप साथ देंगे? इसके लिए रोड पे निकलना पड़ा निकलोगे? रोड ब्लॉक का कहा करोगे? एहतजाज में जाना पड़ा जाओगे? और अगर सुप्रीम कोर्ट के गिराव का फैसला उलमा ने किया आप जाओगे? शायद हमारे कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। शायद हमारे कदम बढ़ाओ, शायद हमारे कदम बढ़ाओ। हुर्मते रसूल पर जान भी कुर्बान है, हुर्मते रसूल पर फरमा गए यहादी ला नबी आबादी, फरमा गए यहादी, फरमा गए यहादी। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ
ताकि हमारी गुफ्तगू को लोग आगे लेकर सुनते हैं तो एक एक दलील पता होनी चाहिए कि हमने एतराज करना है। एक मिनट, अगर कादियानी पे कोई गलत दफा लग गया तो दफा हटा दो, मैं उसके साथ जुल्म हुआ। नबी अलैहिस्सलाम ने भी बात फैसले यहूदी के हक में कर दिए थे कि यहूदी अगर ठीक था तो उधर फरमा दिया, हमें इससे एतराज नहीं है। तुमने दफा खत्म करना था कर देते, तुमने जो करना था कर देते, लेकिन उसमें ये ब्लेंडर मारने की क्या जरूरत है कि जी कादियानियों समेत तमाम को यहाँ मजहबी आजादी हासिल है। मुराद तो फिर कादियानी है ना जो सामने ठहरे हुए हैं। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। और ये पाकिस्तानी कौम जितनी भी गई गुजरी हो ना, इस तरह की बेईमानी को कभी तस्लीम नहीं करेगी। आप अंदाजा लगाएं, कल तक जिस चीफ जस्टिस और अदालतों के लिए इज्जत बाप, माय लॉर्ड, काबिल एहतराम, क्या क्या अल्फाज बोले जाते थे, अब उसको पांव की जूती की नोक पे रखने की बात हो रही है। चीफ जस्टिस साहब, ये काम आपने वापस न लिया, ये वजाहत न दी, हम तेरे घर से खत्म नबुव्वत जिंदाबाद के नारे लगवाएंगे। आपने फिर इस मामले को सुनना है और एक एक चीज लेकर आनी है। याद रखे, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मत की वहदत की अलामत है। इस पर तमाम उम्मत के लोग एक हैं। तो हमने खत्म नबुव्वत के लिए सब कुछ कुर्बान किया था। चले जाए कि दुनियावी जिंदगी क्या है, मुझे बताएं। हमने मौत लेनी है, एड़ियां रगड़ के अगर मेडिकल वार्ड के अंदर, अस्पताल में, इससे बेहतर नहीं है रसूलुल्लाह के लिए शहादत का जाम पी लिया जाए। इससे बेहतर नहीं है यार। मैं सलाम पेश करता हूँ कायद मिल्लत इस्लामी हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब की फिरासत को, जिन्होंने इस फैसले से भी 2-4 रोज पहले मामलात को भांप लिया था और फरमाया था हमारे हक पे डाका डाला है, अब फैसले ऐवान में नहीं हम मैदान में करेंगे। उलमा को इन्होंने असेंबली से बाहर किया है। ये पहला रिजल्ट तुम देख लो। आज मुझसे कई दोस्त जो हमारे मुखालिफ जमातों के, मुख्तलिफ जमातों के, मैं आपके तीन का नाम लेता फिरूं, सबने हमें मैसेज करके भी कहा कि मौलाना एक बात तो खुल गई, उलमा असेंबली से बाहर इन्होंने किए तो हैं, लेकिन आज आवाज वही मिल्लत इस्लामिया का कायद फजलुर रहमान उठा रहा है, बाकी सारों के मुंह सिए हुए। सुभान अल्लाह। और मैं उन टाउटों को भी कहता हूँ जिन्होंने जूती पालिश और बूट पालिश करने के लिए मौलाना के खिलाफ क्लिप तो बनवाए, अब बोलो ना, अब बोलो। अब तो तुम्हारे मुंह से जुमला नहीं निकल रहा, अब तो तुम्हें साफ सूंघ गया। अब मैं हैरान हूं, आप लोग बैठे हैं, मैं आपको एक दावत फिक्र देता हूं। जिस पर्ची पर तुमने मोहर लगाई है ना, अब उस मोहर वाले को कहो ना कि भाई वोट हमने तुझे दिया था, अब बोल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, अब बात करना खत्म नबुव्वत के लिए। और नादा गिर गए सज्जे में जब वक्त क़याम आया, जब खड़े होने की बारी होती है फिर सज्जों पे गिर जाते हैं। लेकिन कुछ भी हो, हम निहत्थे हो या हम ताकतवर हो, हमारा वजन 1 किलो हो या 1 मन हो, वो हुज़ूर पाक की खत्म नबुव्वत के लिए कुर्बान है। और आप जितने बैठे, आपकी जेब में ये मोबाइल मौजूद है, इस मोबाइल पर व्हाट्सएप, सोशल मीडिया ग्रुप्स है, बाकी आईडीज है, आप आज पैकेज लगवाओ और वो पैकेज सारे का सारा खत्म नबुव्वत पर कुर्बान। यार कोई अल्लाह के रसूल की खिदमत में जितनी ताकत होगी उतनी बात तो कर पाएंगे। यार रसूलुल्लाह जब आपकी खत्म नबुव्वत पे बात आई थी, फिर हमने अपने कौम के वडेरे को नहीं देखा था, फिर हमने सियासी जमात को नहीं देखा था, फिर हमने इलाकाई वाबस्तगी को नहीं देखा था, आका इनामदार हमने देखा था, तो आपसे मोहब्बत को देखा था, आपकी इताअत को देखा था। मेरे दोस्तों में जुमला कहता हूँ, सुनो। वो एक खातून थी, हदीस में है ना, बनी इसराइल के दौर की, और वो किसी गलत प्रोग्राम से आ रही थी। रास्ते में उसने कुत्ते को हाँपते देखा जो प्यास से हाँप रहा है। इस खातून के पास और कोई नहीं था तो दुपट्टा उतारा और अपनी जूती के साथ बांधा और जूती कुएं में लटकाई, वहां से पानी उठाया और उस कुत्ते को पिला दिया। वो औरत क्या हुई बताइए ना, बख्शी गई या नहीं बख्शी? सुना या नहीं सुना आपने हदीस? देखो ये मामला वहां हुआ है। इससे पता चला अगर कोई काम बंदा सच्चे दिल से करे, इखलास नीयत के साथ करे, तो रब की रहमत तो उसे माफ करने के बहाने ढूंढती है। आओ रहीम यार खान के गयूरो, अब वक्त है रसूलुल्लाह से वफादारी दिखाने का, अब वक्त है आका इनामदार के लिए उठने का। ये जो कानून हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की कुर्बानियां
और उस वक्त के मुसलमान की कुर्बानियां, 10 लाख बंदा घर से बेघर हुआ, 1 लाख जख्मी हुए, 10,000 जहान शहीद हुए। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की पुलिस के सामने मुसलमानों ने सीना खोल के कहा, और तुम्हारी क्लाशनकोव की मैगजीन में इतनी गोलियां नहीं है जितनी हुजूर पे कुर्बान होने के लिए हमारे माओ ने सीने जने। आज वो वक्त है, आज वफादारी दिखाने का वक्त है। इसलिए मेरे दोस्तों, उठिए, हर बंदा अपनी ताकत की बकदर बात करे। सिर्फ कल के जुमे तक बात करके हमने जज्बात को यहाँ ठंडा नहीं होने देना, हमने इसको हर मैदान में उतारना है। वो फेसबुक हो, वो यूट्यूब हो, वो ट्विटर हो, वो टिकटॉक हो, वो tune.pk हो, वो इंस्टाग्राम हो, वो गूगल हो, वो जो भी हो, जो आपके पास व्हाट्सएप की शक्ल में मौजूद है, SMS की शक्ल में मौजूद है, कॉल्स की शक्ल में मौजूद है, वॉइस की शक्ल में मौजूद है, या ग्रुप्स आपके पास मौजूद है, ये तमाम के तमाम अकीदा खत्म नबुव्वत जिंदाबाद और कादियानियों के हामी सब हरामी और चीफ जस्टिस के फैसले को मुस्तरद करने के लिए इन तमाम आइडियाज को रंगीन करोगे या नहीं करोगे? ये जो हाथ है ना, हाथ, सूरत यासीन आप सुबह उठ के पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? चौथे रकू में कौन सी आयत है? अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। क्या माना कि क़यामत में मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी। पता नहीं बंदा कूड़ बरेंदा हो, चल मुंह बंद कर, बंद हो गए। व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम, हाथ बोलेंगे अल्लाह इसने क्या किया था, पांव बोलेंगे अल्लाह क्या किया था। अगर यहाँ हाथ के जरिए भी हम लिख कर ये बात पहुंचा दें बाकी दोस्तों तक, तो फिर ये हाथ भी बोलेगा अल्लाह, जिस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज कादियानियों के लिए नरमी की जबान बोल रहा था, ये आपके ओ नबी का गुनाहगार उम्मती तब भी खत्म नबुव्वत के लिए परवाना था। अगर ये गवाही आ जाए, हमारा सौदा सस्ता है या महंगा? बोलिए। तो मेरे दोस्तों, करोगे इंशाल्लाह। और इसके साथ अभी मैंने भाई मौलाना राशिद को कहा, मैंने कहा एक काम करो अपने इलाके में, कल रोना नहीं कि हमारे इलाके में कादियानियत आ रही है तो क्या होगा, कोशिश करो यहाँ आप खत्म नबुव्वत कोर्स रखो। खत्म नबुव्वत कोर्स का माना रोजाना कुरान की एक आयत पर एक हदीस याद कर जाओ। 1 हफ्ते का कोर्स होता है, रोजाना आधा घंटा दे दें। कितना? सिर्फ आधा घंटा। 24 घंटे हैं, 23 घंटे 30 मिनट आपके पास, 23.5 घंटे आपके, आधा घंटा हुजूर को दे दो। सिर्फ हमारी राशिद और साजिद की बात नहीं, आधा घंटा इनको हुजूर पाक की वजह से अल्लाह की रजा के लिए दे दो। चाहे वो कोई बुजुर्ग है, चाहे वो कोई बच्चा है, चाहे वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, वो आए 2 और 2 4 की तरह ये खत्म नबुव्वत पे चंद अहादीस और चंद कुरान की आयतें समझा जाए, ताकि हर घर में खत्म नबुव्वत के दलाइल पहुंच जाए। आप कोर्स के लिए आएंगे, अपने दोस्तों को भेजोगे, औलाद वालों को भेजोगे, सबको भेजोगे ना, तो ये जरूर काम करें। और इसके लिए इनका मदरसा माशाल्लाह मौजूद है, यहाँ पर अपनी बच्चियों को और अपने बच्चों को अल्लाह के कुरान के लिए भेजें, ताकि वो ये दीन पढ़ें, दीन समझें, शरीयत पढ़ें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की बात बताएं और शरीयत इस्लामिया की बात बताएं। आपको और हमें खत्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ की बात बताएं और हमें बताएं कि अल्लाह कुरान में क्या कहता है, हुज़ूर पाक फरमान में क्या कहते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ इन बच्चों को जिनने पढ़ा, इनके वालिदैन को जिन्होंने पढ़वाया, इनके असातिज़ा को जिन्होंने पढ़ाया, इनके मोमिनीन को जिनने पढ़ाने का सबब बना। अल्लाह हम सबको दीन इस्लाम पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें भी और हमारी औलाद को भी कबूल फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कादियानियों के साथ कारोबार करने वाले शख्स के साथ कारोबार करना कैसा है? अभी मैंने कहा कि कादियानियों के हामी सब हरामी और हरामी नाल कारोबार करना कैसा है। तो आपको डाटा पता है, जो हुजूर के दुश्मनों के साथ यारी रख के बैठे, तो याद रखो दुश्मन दा यार दुश्मन, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप समझ जाए अकीदा खत्म नबूवत पे उलमाए देवबंद की कुर्बानियां क्या है। मुहद्दिस जलील अल्लामा सैयद यूसुफ बिन नूरी रहमहुल्लाह
اور सैयद ज़ादा हज़रत ताउल्ला शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह, इनकी कुर्बानियां शायद किसी अंधा हुई हो जिसको न पता हो, वरना हर बंदे को पता है कि इन्होंने अकीदा खत्म नबूवत पर पहरा दिया है। ये उलमा आज असम्बली से बाहर है और पहला हमला हो गया है। हाले असम्बली का पहला इजलास कोई नहीं थिया, दसो हाले पहला कोई नहीं थिया, सड़क की चादर पहले टप्पे रेत निकली खड़ी है अगू के थी सी। तो इन उलमा का बाहर रखने का मतलब ही यही होता है कि इनमें कुर्बानी देनी है और इन्हें फिर दीन के लिए निकलना है। मौलाना बताइए अकीदा हयातुन नबी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदा हयातुन नबी पर हमारा ईमान है। इधर से दरूद पढ़े फरिश्ते ले जाते हैं, रोज़ अक़दस पे पढ़े आका खुद सुनते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु तआला व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।